आदाब नाज़रीन, मैं हूं अफसाना और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय केजीएन वॉलपेपर ट्रेडर। केजीएन वॉलपेपर ट्रेडर, हमजा कलेक्शन, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड ग्लोबल वॉलपेपर। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से आज अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का इफ्तिताह मेयर विधान उपाध्याय ने किया। मेयर विधान उपाध्याय ने वर्चुअल के जरिए किया। मेयर विधान उपाध्याय, आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर राहुल मजूमदार और डॉक्टर गांगुली ने जानकारी देते हुए कहा कि ममता बनर्जी के हिदायत से हर वार्ड में हेल्थ सेंटर कायम किए जाएंगे। इसके अलावा बेघर लोगों के लिए 2 होमलेस बिल्डिंग भी NULM के देखरेख में तामीर कराई गई है। इसका भी इफ्तिताह मेयर ने किया। इस मौके पर डिप्टी मेयर वसीमुल हक, MIC गुरदास चटर्जी, MIC दिव्येंदु भगत, MIC इंद्रानी चटर्जी, MIC सुब्रातो अधिकारी खास तौर से मौजूद थे। माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय লিডারশিপে আজ আসানসোল কর্পোরেশনে আমাদের যে হেলথের নতুন ইমপ্রুভমেন্টের ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে অলরেডি আমাদের 22টা হেলথ সেন্টার অপারেটিং চলছে। UPSC আরবান প্রাইমারি হেলথ সেন্টার অ্যাক্রস দি এন্টায়ার আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, অর্থাৎ আসানসোল এবং কুলটি এবং জামুরিয়া এবং রানীগঞ্জ। টোটাল 13,82,600 পপুলেশন, যার মধ্যে 7,45,000 আসানসোলে এবং 3,25,000 মতো প্রায় আমাদের কুলটিতে, 1,60,000 আমাদের জামুরিয়াতে এবং 1,30,000 মতো রানীগঞ্জে। 106টা ওয়ার্ড এবং 10টা বড় নিয়ে এই কর্পোরেশনকে আমরা নতুনভাবে যে ঢেলে সাজানোর যে প্রয়াস মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন, তাতে আমরা সকলে এক একজন কর্মচারী বা একজন তাদের টিম লিডার, টিম মেম্বার হিসেবে কাজ করছি। তো 15th ফাইন্যান্সিয়াল কমিশন যে গ্রান্ট করেছিল যে যেটার জন্য আজকের দিনে আমাদের যে উদ্বোধনের অনুষ্ঠান সেটা হচ্ছে আরবান প্রাইমারি হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার। তো এটার ইউনিক ফিচারটা হচ্ছে যে আরবান প্রাইমারি হেলথ সেন্টার যেটা ফাউন্ড করা হয়েছিল সেটাতে অলরেডি আমরা যেখানে মেন কাজ করছি ওটা হচ্ছে অনেকটা ব্লক এবং জিপি স্তরে, যেটা ডিস্ট্রিক্ট হেলথে আছে যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ব্লক BPSC ব্লক প্রাইমারি হেলথ সেন্টার, সেটা হচ্ছে আমাদের আরবান প্রাইমারি হেলথ সেন্টার, যেখানে আমাদের ডাক্তারবাবু এবং নার্সিং স্টাফ এবং ফার্মাসিস্ট 3জন হচ্ছেন মেন তার পাশাপাশি ল্যাব আছে এবং আমাদের ANM আছেন যারা ম্যাটারনিটি হেলথ কেয়ার MCH এবং RCH অর্থাৎ গর্ভবতী মহিলাদের তাদের প্রেগনেন্সি শুরু হওয়ার থেকে শুরু করে তাদের প্রেগনেন্সি টাইমে তাদের অ্যান্টিনেটাল চেক আপ থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে বাচ্চা হওয়ার পর তার ইমিউনাইজেশনের গোটা ব্যাপারটা আমাদের এই আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে মিউনিসিপ্যাল হেলথে দেখা হয়। এবং এর পাশাপাশি আমরা ল্যাব ফেসিলিটি চালু করেছি এবং টেলিমেডিসিন সিস্টেম রিসেন্টলি চালু হয়েছে। তো এইটার বাইরে এই যে পপুলেশনটা যেটা আমাদের 50 কিলোমিটার ব্যাসার্ধ এলাকা এবং 50,000 পপুলেশনের জন্য প্রত্যেকটি হেলথ সেন্টার UPSC যেটা দায়বদ্ধ, সেটা এখানে আশেপাশে আমাদের আগে পুরনো RCH SHP বলে কতগুলো ইউনিট ছিল, সাব হেলথ পোস্ট। ঠিক আছে, মাননীয় মেয়র সাহেব, ডেপুটি মেয়র সাহেব এবং MIC সাহেব যারা আছেন এবং অন্যান্য যারা সুবিবৃন্দ আছেন, একটাই কথা বলার, আমি বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। আমাদের হেলথ অফিসার সাহেব ডিটেলে বলেছেন স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা, স্বাস্থ্য কি। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন একটা কথাই বলে, সেটা হচ্ছে ফিজিক্যাল, মেন্টাল আর সোশ্যাল ওয়েলবিং। আপনারা যেটা দেখলেন এখানে এই যে হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টারগুলো হচ্ছে, এখানে কিন্তু কেবল রিপ্রোডাক্টিভ চাইল্ড হেলথ, মা শিশুর স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ হবে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু কমিউনিকেবল ডিজিজ, নন কমিউনিকেবল ডিজিজ, কাউন্সেলিং সার্ভিস এবং আরও অনেকগুলো যোগা থেরাপি। তার মানে তার কেবল ফিজিক্যাল নয়, মেন্টাল এবং সোশ্যাল ওয়েলবিং নিয়েই কিন্তু এই হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টারগুলো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশে এটা আমরা হচ্ছে। এবং আমি একটা কথাই বলতে পারি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত না করে, সেটা হচ্ছে আমি খুব বেশি দিন এখানে আসিনি, কিন্তু এর মধ্যেই আমি দেখেছি যে যেরকমভাবে
আমাদের মাননীয় মেয়র সাহেব এবং ডেপুটি মেয়র সাহেব এবং আমাদের এমআইসি যারা আছেন এবং পুরো যারা স্বাস্থ্যে আছেন এবং অন্যান্য জায়গায় আছেন, হেলথটাকে প্রায়োরিটি দিয়ে কাজ করার জন্য সবসময় চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরাও আশা করব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে নির্দেশ আছে সেই অনুযায়ী আসানসোলে আমরা মানুষজনের কাছে এই হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টারগুলো করে খুব দ্রুত ভালো পরিষেবা তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। সবাইকে ধন্যবাদ, নমস্কার। শেল্টার ফর আরবান হোমলেস, মাননীয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাদের 4টি শেল্টার ফর আরবান হোমলেস স্যাংশন করেছিলেন আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের জন্য, যার মধ্যে 2টি অলরেডি পরিচালিত হচ্ছে এনজিওর মাধ্যমে এবং আসানসোল কর্পোরেশনের সুপারভিশনে। সেটি একটি রয়েছে জামুরিয়াতে এবং একটি রয়েছে কুলটির টিশেরগড় পোস্ট অফিস মোড়ের কাছে। এখন বর্তমানে আসানসোল ডিপো পাড়াতে এবং রানীগঞ্জের হুসেননগরে এই দুটোতে 4 তলা মানে 4 স্টোরের বিল্ডিং, যেটা গৃহহীন মানুষ যারা তাদের জন্য বানানো হয়েছে এবং সেটির আজকে ইনগরেশনের জন্যই আমাদের সকলকেই এই নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সেটি হচ্ছে 50টি বেডের একটি বিল্ডিং, যেখানে গৃহহীন মানুষরা থাকবেন। গৃহহীন মানুষ যারা রাত্রেবেলায় বা দিনের বেলাতে স্টেশনে থাকেন বা বাস স্ট্যান্ডে রয়েছেন বা কোনো বাড়ির সামনে দাওয়াতে থাকেন, প্লাস্টিক শেডের মধ্যে থাকেন, অর্থাৎ এক কথায় যদি বলি মাথার উপর যাদের ছাদ নেই, সুতরাং গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত সব কিছু তাদের সহ্য করতে হয়। সেই মানুষগুলো যাতে মাথার উপরে ছাদ পান, সেই জন্য মাননীয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সুডার সহযোগিতায় আমাদের এই শেল্টার দুটি হয়েছে। এই শেল্টার দুটি এনজিওর মাধ্যমে পরিচালিত হবে, যেই এনজিও দুটি সুডা এমপ্যানেলড, এবং আজকে তার শুভ উদ্বোধন হবে। আমাদের যে আসানসোল কর্পোরেশনে স্বাস্থ্য বিভাগে যে ওয়ার্ড ভিত্তিক একটা সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র হবে 78 আমরা আসানসোল কর্পোরেশনে পেয়েছি। তার মধ্যে 7খানা যেটা অলরেডি টেন্ডার হয়ে কাজটা শুরু আজকে ব্যবস্থা হাত দিয়ে হলো। আরো আগামী দিনে বিভিন্ন ওয়ার্ডে এই কাজটা হবে। তার পাশাপাশি 4টা আমরা পেয়েছিলাম হোমলেস সেন্টার জন্য, 4টা এনইউএলএম হোমলেস সেন্টার বিল্ডিং, 2টা রানিং, 2টা আজকে
যেটা প্রায় 2 কোটি টাকা দিয়ে কমপ্লিট করা হয়েছে, সেইটা মাননীয় মেয়র সাহেবের হাত দিয়ে আজকে উদ্বোধন হলো। যারা রাস্তাঘাটে আছে সেই মানুষরা ওইখানে ছাদে যেমনি আমরা বাড়িতে থাকি সেভাবে ওরা সম্মানীয়ভাবে থাকতে পারবে। এই সমস্ত কাজ কিন্তু আমাদের মাথা উপরে একজন নেত্রী আছেন যারা মমতা ব্যানার্জি, এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, তাদের চেষ্টায়, যাদের চিন্তা ভাবনা দিয়ে এই মাথায় এসে এই কাজটা হয়েছে। দপ্তরের আধিকারিকরা আছেন, সকলকে অনেক অনেক অভিনন্দন, ধন্যবাদ। যা উদ্বোধন হয়েছে সেটা আপনারা সামনে দেখলেন। আমার আগে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকেও ডাক্তারবাবু বলেছেন এবং NULM ম্যাডামও বললেন এবং কমিশনার সাহেবও বলেছেন। তো স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে 7খানা UH and WC আরবান হেলথ উদ্বোধন করা হলো। এটার আনুমানিক মূল্য হচ্ছে প্রায় 2.5 কোটি টাকা। এটা কিন্তু পুরো আসানসোল কর্পোরেশনে প্রতিটি ওয়ার্ডে কিন্তু একটা করে হবে, যেটাতে 78 আমাদের অলরেডি স্যাংশন হয়েছে, আর বাকিগুলো হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি। আর NULM এর 4টা ছিল, মানে যেটা দারুণ প্রয়াস বলবো। আমরা প্রতিনিয়ত দেখি যে বিভিন্ন মানুষ স্টেশনে হোক, বাস স্ট্যান্ড হোক বা যে কোনো জায়গায়, মানে যেহেতু এটা কর্পোরেশন, তো সেখানে বিভিন্ন জায়গায় রাস্তাঘাটে পড়ে থাকতে দেখা যায়। তো গৃহহীনদের জন্য বাড়ি এবং এত সুন্দর বাড়ি, সেটা সত্যিকারে খুব সুন্দর বানিয়েছে এবং এটা উপযুক্ত মানুষ যাতে পায় সেটা নিশ্চয়ই আমাদের ডিপার্টমেন্টকে এবং যারা এটা চালাবে তাদেরকে দেখতে হবে, এবং যারা নেবে তারাই যেন থাকে। এবং মানে অনেকে হয়তো মানে আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখছি গরিব মানুষদেরকে বাড়ি দেওয়া হচ্ছে, বাড়ি দেওয়ার পর তারা কি করছে, সেই বাড়িটাকে বিক্রি করে দিচ্ছে, বিক্রি করে দিয়ে ভাড়া দিয়ে দিচ্ছে বা আবার সেই জায়গাতে পৌঁছে যাচ্ছে। তো সেটা আমাদেরকে নজর রাখতে হবে, কারণ আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাইছেন সবার জন্য বাড়ি। हम लोग ये देखते हैं कि जब हमारी स्टेट कमेटी की मीटिंग होती है कोलकाता में, वहाँ भी जब हर जिला से जो लोग आते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आते हैं, उनका भी यही कहना है कि हम लोगों को सही तरीके से काम करने का मौका अपने अपने जिला में या अपने अपने ब्लॉक में नहीं दिया जाता। ये बातें आज TMC माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन सैयद अफरोज ने एक मीटिंग के दौरान कही। दरअसल आज भगत सिंह मोड़ पे वाक़े TMC माइनॉरिटी सेल के दफ्तर में 21 जुलाई शहीद दिवस को मद्देनजर रखते हुए एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर देवाशीष सरकार, INTTUC नेता राजू अहलुवालिया और दीगर ब्लॉक के सदर और अरकान मौजूद थे। के लिए और उनके दुख दर्द में शामिल रहने के लिए हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और आइंदा भी हम लोग उनके साथ रहेंगे, हम लोग काम करते रहेंगे। और जो भी हम लोगों की जो जायज़ मांग है और हम लोगों की जायज़ ज़रूरतें हैं पब्लिक के लिए, पब्लिक की ज़रूरत के लिए, जो भी ज़रूरतें हैं उनके हकूक़ के लिए, उनके जो है जो भी ज़रूरतें हैं हम लोग हमेशा उनके साथ रहेंगे। औरत बोले जो बेटा होगा तुम लोग अरेंजमेंट करो, हम समझ लेंगे। तो इस तरह का अगर प्रतिनिधित्व पे हम लोग काम नहीं कर पाए तो मेरे ख्याल और की प्रतिनिधित्व पे काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए अप्रोच राय जब है तो हम लोग को चाहिए कि अपना एक टीम बना करके, टीम वर्क करके और अपना काम करें, माइनॉरिटी के लिए कुछ काम। ये एक फ्रंटियर जो है, ये फ्रंटर जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक विंग है। तो जैसे कि आपको INTTUC है, महिला है और भी दूसरे जो है छात्र परिषद है, TMYC है, INTTUC है, सारा ये चीज़ उसमें एक माइनॉरिटी सेल भी है। लेकिन हम लोग ये देखते हैं जब हमारे स्टेट कमेटी की जब मीटिंग होती है कलकत्ता में, वहाँ भी हमारे जब हर जिला से जो लोग आते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आते हैं, उनका भी यही कहना है कि हम लोगों को सही तरीके से काम करने का मौका अपने अपने ज़िला में या अपने अपने ब्लॉक में नहीं दिया जाता है। जब हम लोग यहाँ पे, जब मुझे ये चार्ज दिया गया विधानसभा इलेक्शन से पहले, तो हमने देखा कि हमको जो ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ हमको मिला, बिल्कुल माइनॉरिटी सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन था, संगठन था, वो जीरो मिला। कोई भी एक्टिव, कोई भी ब्लॉक या उससे पहले जो भी लोग थे ज़िला में, उन लोगों की तरफ से कोई भी ऐसा एक्टिव ब्लॉक या एक्टिव डिस्ट्रिक्ट कमेटी हमको नहीं मिला। खैर हमने काम शुरू किया और 1 से 1.5 महीने के अंदर में हमने 18 ब्लॉक को तैयार किया। उस वक्त जो हमको लगा, क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल करीब आ गया था और इलेक्शन से पहले स्टेट की तरफ से भी प्रेशर था, ज़िला की तरफ से भी प्रेशर था कि हम लोग जल्द से जल्द 18 कमेटी को कंप्लीट कर हम लोग उसको वहाँ पे हम लोग उसको जमा करें।
उस वक्त हम लोगों ने बनाने के बाद हम लोगों ने काम भी शुरू किया। और काम का मतलब है कि हम लोग ये पॉलिटिकल काम के साथ साथ जो भी दीदी का जो प्रकल्प है, सोशल वेलफेयर स्कीम है, उसको भी हम लोग साथ लेकर चलते रहे। लोगों का जो भी स्कीम की जो भी चीज जरूरतें, जैसे लक्ष्मी भंडार आया, स्वास्थ्य साथी आया, आपका ओल्ड एज पेंशन आया, आपका ये हाँ उपश्री आया, आपका ये घर बनाने का स्कीम आया, ये भी जितने भी सारे जो स्कीमें थे वेलफेयर स्कीम दीदी के, उसको भी हम लोग लेकर चलते रहे। और उसमें भी अगर लोगों को कोई भी आवाम को किसी तरह की परेशानी हुई तो हम लोग उस काम को भी आगे बढ़ाते रहे। साथ साथ डेवलपमेंट के तरीके तौर पे जो ब्लॉक में अगर कहीं पे कोई एजुकेशन का कोई मामला है, कोई स्कूल जो है वो डेमोलाइज हो गया है या फिर कहीं पे और भी कोई मामला है, ये सब चीज़ों को भी हम लोग करते रहे साथ साथ। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते हम लोगों को जो प्रैक्टिकली स्टेप वाइज जो हम लोगों ने जो वॉच किया कि सही मानों में हम लोगों के लोगों को काम करने में कुछ दिक्कतें आती हैं। वो दिक्कतें जाने अनजाने में अब हम लोग उसको एक्सपोज करें ना करें, लेकिन दिक्कतें आती हैं। हमने भी इसको इंटरनल तरीके से हमने भी इसको वॉच किया, इसको महसूस किया, इसको फेस भी किया। लेकिन हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि बाद में हम लोग इसको अपने ब्लॉक को जब लेकर बैठेंगे, ये देखिए पॉल्यूशन सिर्फ जो है, अगर हम लोग किसी भी आदमी के खिलाफ, चाहे वो अपने घर के लोग हो, बाहर के लोग हो, बगल के लोग हो, सामने के लोग हो, पीछे के लोग हो, हम लोग अगर सिर्फ कंप्लेन करते रहेंगे तो मसला का हल कभी नहीं होगा। कंप्लेन करना कभी किसी भी कोई भी मसले का हल नहीं है। शिकायत जो है वो हमेशा जो आदमी शिकस्त खा जाता है वही आदमी शिकायत करता है। ठीक है, हमको प्रॉब्लम पता चल गया, हमने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमको कुछ टेस्ट लिखा, हमने वो टेस्ट कराया, हमने यूएसजी कराया, हमने एंजियोग्राम कराया, हमने ब्लड टेस्ट कराया, हमें बीमारी पता चल गई। लेकिन अब हमें जो है उसकी ज़्यादा बात नहीं करना कि हमें ये हो गया, हमारा लीवर खराब हो गया, हमारा किडनी खराब हो गया, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। अगर उस पर आप ज़्यादा बात करते रहिएगा तो आप और दिन ब दिन बीमार पड़ते रहिएगा। हमें जो है बिल्कुल ठीक है, बीमारी पता चल गया, डॉक्टर ने डायग्नोज कर दिया, अब उस पर हम लोगों को सही तरीके से उस पर अपने किस तरीके से जो डॉक्टर का एडवाइस है उसको किस तरीके से दवा खाना है, किस तरीके से हम लोगों को उसको मैनेज करना है, उसको बैलेंस करना है और उससे बीमारी से किस तरीके से उभरना है। मेरे बोलने का मकसद ये है कि बीमारी जो भी हम लोगों के माइनॉरिटी सेल के लोगों के साथ जो भी शिकायत है, कंप्लेन है, इसका सिर्फ और सिर्फ आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए और किसी भी लीडर के पास चले जाइए, उनका कहना और उनका मशवरा, उनका एडवाइस एक ही होगा कि इसको हम लोग काम करके ही हम लोग इससे लड़ सकते हैं। हम लोग सिर्फ यूनाइटेडली हम लोग ब्लॉक में, जब हम लोग हर ब्लॉक में एक कमेटी होगी और हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हम लोग जो है ये देखते आ रहे हैं कि जब से हमने ये ब्लॉक बनाया है, जैसा कि अभी सिराज भाई ने कहा, हमारे बहुत सारे 99% ब्लॉक प्रेसिडेंट जो है वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के मीटिंग में, जैसे आपको मदर के साथ, महिला के मीटिंग में या TMYC के मीटिंग में या आपको छात्र के मीटिंग में, INTTUC के मीटिंग में जाकर वो बोलते हैं कि हम बहुत अच्छा पार्टी कर रहे हैं। ठीक है, सभी लोग हम लोग ये ममता बनर्जी की पार्टी है, हम लोग सभी लोग जो है ये फ्रंटर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। आप सबके मीटिंग में जाइए, आप सब लीडर के साथ रहिए, आप हर मीटिंग अटेंड कीजिए, लेकिन साथ में अपना माइनॉरिटी सेल जो आपको एक इतना बड़ा इज्जत दिया है, सम्मान दिया है, एक पोस्ट दिया है, उसको भी आप मीटिंग कीजिए। मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ पॉलिसी और प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आज CITU की जानिब से CMPTI दफ्तर के करीब एहतजाज किया गया। इस मौके पे सुजीत भट्टाचार्य, स्वादीप महांती, मानस मुखर्जी खास तौर से मौजूद थे। Lord Jail, Lord Bay. Lord Jail, Lord Bay. Anjina
पर लौट जेल लौट दे लौट जेल लौट दे एको बहुत खुशकिस्मत है कि हमारे टीम से कॉमरेड सुनील भट्टाचार्य जी आए हैं और मैं ज्यादा से ज्यादा चाहूंगा कि वही आपसे बात करें और उनके बातचीत करने के बाद हम लोगों का एक सवाल जवाब का सिस्टम भी रहेगा। अगर कोई जेबीसीसीआई के बारे में अगर कुछ सवाल करना चाहते हैं कि भाई हमारा रवैया क्या होने वाला है, किस दिशा में जा रहा है, कैसे ये संभव होगा कि हम लोग को सही है जेबीसीसीआई ये मिल जाए, एग्रीमेंट मिल जाए, तो आप लोग ये सवाल उनसे कर पाएंगे क्योंकि हर वक्त वो बहुत व्यस्त है, हर वक्त वो नहीं आ पाते हैं। लेकिन आज हमारी खुशकिस्मती है कि वो आए हैं और उनको बुलाने के पहले मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहूँगा। आपको याद है कि जब स्टैप इम्प्लीमेंटेशन हुआ था तो हम लोगों को पता चला कि हम लोगों का सैलरी 1 से 31 तारीख तक यानी कि महीने का महीना सैलरी मिलने वाला है और उसके पहले इम्प्लीमेंटेशन के पहले तक हम लोगों का सैलरी 16 से 15 तारीख का मिला करता था। का सैलरी है उसको रैशनलाइज करके जिसको जिसको जितना मिलना है वो दिया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ ये मैनेजमेंट इन्होंने अपने सीआईएम के आका लोगों से उन्होंने ये सीख लिया है कि कुछ भी देना है तो पहले बोल के नहीं देंगे। जेबीसीसीआई में जैसे वो 3% वो मूंगफली जैसा कुछ पकड़ाने की कोशिश में था कोल इंडिया मैनेजमेंट, उसी तरह यहाँ भी ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं आप लोगों को मिल गया है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग अगर किसी का कोई समस्या है तो अलग से लिख सकता है। तो हमने अपने सारे मेंबर्स को आग्रह किया है कि हम लोग एक लेटर का फॉर्मेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और आप लोग उस लेटर को साइन करके रिसीव करवा के मैनेजमेंट को देने के साथ साथ थ्रू प्रॉपर चैनल हम लोगों को एक कॉपी दे दीजिए ताकि हम लोग इस पर अगला कार्रवाई कर सकें। क्योंकि हम लोग ये कभी नहीं मानेंगे कि काम कराया गया है और तनख्वाह नहीं मिलेगा, ये हम लोग नहीं मानने वाले। ये याद दिला देते हैं हम ये सारे आरआईवन के मैनेजमेंट और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को कि इस चीज को आप लोग ख्याल रखें कि अगर आपके अंडर में आपके कर्मचारी लोगों ने आपके लिए काम किया है तो उनका तनख्वाह देना बनता है। उनका तनख्वाह आप दबा के नहीं रख सकते। ये अभी तक ये गणतंत्र है, यहाँ पर देश में कानून है। तो चलिए हम लोग वक्त जाया नहीं करेंगे, इस पर हम लोग की कार्रवाई जो होगी वो होगी। और एक बार आपसे जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहेंगे कॉमरेड सुनील भट्टाचार्य। वक्त हो चला एक मुख्तसर से वक्फे का। घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसुसोल। कॉल करें 9883824337 पर। Meadwaste Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD unit, super specialist doctors के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, diagnostic and pathological service with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253।
अपने घर को बनाएं और भी सुंदर, क्योंकि केजीएन वॉलपेपर ट्रेडर लेकर आया है कुछ खास सिर्फ आपके लिए। सभी तरह के डिजाइनर वॉलपेपर, वॉल स्टिकर, कस्टमाइज्ड वॉलपेपर, पीवीसी मैट फ्लोरिंग, पीवीसी पैनल, यूवी मार्बल शीट, वर्टिकल गार्डन के साथ ही साथ होम डेकोर की कई वैरायटीज हमारे स्टोर पे आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है 3rd फ्लोर गैलेक्सी मॉल आसनसोल। इसके अलावा हमारे यहाँ होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी मोहल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। कहते हैं कि अपनी जमीन अपना छत नसीब वालों की किस्मत में आती है। मन्नत इंटरप्राइज आपके ख्वाबों को करेगा साकार। बानपुर काला झरिया रोड, रिवर साइड लाइन, नबी नगर 9 घंटी पाइपलाइन रोड, प्लॉट फॉर सेल, वो भी आपके बजट में। आज ही कांटेक्ट करें 8250 259 567। आज़ादी की महोत्सव पर हम लोग उत्सव पर्व मना रहे हैं, जो 16वीं वाहिनी 16 बटालियन की तरफ से महिला बटालियन ये आयोजित किया गया है। इसमें ये पिछले कई दिनों से मनाया जा रहा है, जो अगला 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। कहाँ से कहाँ आज? ये आज हम लोग अपना बटालियन कैंपस से ये BNR मोड़ ये होते हुए आपका बैंक मोड़ होते हुए ये बटालियन में वापस जाएंगे। लगभग हमें 15 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। आपका परिचय? मेरा नाम सब इंस्पेक्टर शैलेश कुमार है। क्या कार्यक्रम था आज? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आसनसोल सेंटर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की हर 2 महीने बाद मीटिंग होती है। अप्रैल में निगाह में हुई थी, तो जून में होनी थी, तो हमारे सेक्रेटरी तरसेम अंकल जी की तबीयत खराब थी, वो बाहर गए हुए थे, वो आ गए हैं। तो आज हमारी जुलाई की मीटिंग यहाँ अंडाल बाजार में हुई है। बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई है, जिसमें निरसा, कुमार डुबी, पानागढ़, रूपरामपुर, बहुला, उखड़ा, सब जगह के प्रधान आए थे। अंडाल सब जगह के, रानीगंज के सब आए थे। तो मीटिंग में हमारे आने वाले कार्यक्रम के बारे में चर्चा हुई है, जिसमें सबसे पहले एजुकेशन अवार्ड है। जो हमारा एजुकेशन अवार्ड है शाखा ननकाना साहब, जो शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, ये शाखा ननकाना साहब के ऊपर समर्पित रहेगा ये वाला प्रोग्राम। उसके बाद आनंद कारज है, जो आनंद कारज जो 28 नवंबर को होना था, वो 2 दिसंबर गोविंद नगर गुरुद्वारा में होगा। उसके बाद हमारे 3 अमृत संचार के प्रोग्राम है, जिसमें पहला आपका 5 नवंबर गुरु नानक गोविंद नगर गुरुद्वारा में होगा, क्योंकि गुरु नानक देव जी का उपदेश था, कीरत करो नाम जपो वंश को, तो गरीब का मुंह गुरु दी गोलक। तो उसी के उपदेश पर हम लोग, हमारी कमेटी चल रही है। तो नाम जपने का जो है, तो हम लोग जितने भी हमारे इलाके के आगू है, कोशिश कर रहे हैं कि अमृत, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह का कहना था, रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नाही, रहनी रहे सोई सिख मेरा, वो साहिब में इसका चेहरा।
तो गुरुद्वारे चलाने के लिए अमृतधारी या अपने परिवार को या अपना जीवन सफल करने के लिए अमृतधारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमारा अमृत शिक्षा का प्रोग्राम एक गोविंद नगर में है, एक गायघट्टा में है, एक कुमारडुबी में गुरु गोबिंद सिंह का प्रकाशोत्सव में वहाँ पर भी होगा, अमृत ब्लड कैंप भी है, और भी हमारे बहुत से प्रोग्राम हैं। आने वाले समय में आपको बताया जाएगा। और आज की मीटिंग हमारी बहुत ही अच्छी हुई, जिसमें सारे जगदीश सिंह संधू बग्गा, हरजीत सिंह बग्गा वगैरह सारे आए थे, मंजीत सिंह भंगू, निर्मल सिंह सारे ही आए थे। सब बहुत अच्छी मीटिंग हुई, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पानागढ़ से वाइस प्रेसिडेंट जग्गू सिंह जी आए थे और राकेश खनूजा वगैरह जमुड़िया सब आए थे। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और काल पुरख से अरदास करता हूँ जितने भी सेवाएं हैं आप अंग संग होकर हमारे से करवाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। कल दोबारा इसी वक्त आपसे होगी मेरी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।